Define metabolism. Answer. Metabolism is the set of chemical reactions that occur in living organisms to maintain life. मेटाबॉलिज्म की वजाहत करें। जवाब, मेटाबॉलिज्म कीमियाई रद्द-अमल का मजमूआ है जो जानदारों में जिंदगी को बरकरार रखने के लिए होता है। Define biological catalysts. Answer. Enzymes are called biological catalysts because they speed up chemical reactions in living organisms without being consumed or permanently altered in the process. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तारीफ करें। जवाब, एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है क्योंकि वो जानदारों में कीमियाई रद्द-अमल को तेज़ करते हैं बग़ैर इस्तेमाल हुए इस अमल में मुस्तकिल तौर पर तब्दील होते हुए। What is the active site of an enzyme? Answer. The active site of an enzyme is a three-dimensional region where substrates bind and undergo a chemical reaction. एक एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है? जवाब, एक एंजाइम की एक्टिव साइट एक तीन जहती खित्ता है जहां सबस्ट्रेट्स जुड़े होते हैं और कीमियाई रद्द-अमल से गुजरते हैं। What are cofactors and coenzymes? Answer. Cofactors are inorganic ions or non-protein organic molecules that help enzymes in catalyzing reactions. Coenzymes are organic molecules, often vitamins that work with enzymes to help in the reactions they catalyze. कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स क्या हैं? जवाब, कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक आयन या गैर प्रोटीन नामियाती मॉलिक्यूल्स हैं जो कैटालाइजिंग रिएक्शंस में एंजाइम्स की मदद करते हैं। कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, मसलन विटामिन्स, जो एंजाइम्स के साथ काम करते हैं ताकि उनके रिएक्शन में मदद मिले जो वो कैटालाइज करते हैं। What is an enzyme substrate complex? Answer. When a substrate enters the active site of the enzyme, it fits perfectly, and the two binds together, forming the enzyme substrate complex. एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है? जवाब, जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में दाखिल होता है तो ये बिल्कुल फिट हो जाता है और दोनों आपस में जड़ जाते हैं जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। How is the lock and key model different from the induced fit model? Answer. The lock and key model says enzymes and substrates fit perfectly like a key in a lock. The induced fit model says enzymes can change shape to fit substrates, like a hand in a glove. लॉक एंड की मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल से कैसे मुख्तलिफ है? जवाब, लॉक एंड की का मॉडल कहता है कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स ताले की चाबी की तरह बिल्कुल फिट होते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल का कहना है कि एंजाइम्स सबस्ट्रेट्स को फिट करने के लिए शक्ल बदल सकते हैं, जैसे दस्ताने में हाथ। What is the difference between intracellular and extracellular enzymes? Answer. Both are protein molecules. Intracellular enzymes, for example, mitochondrial enzyme function inside the cell, while extracellular enzymes, for example, pepsin, work outside the cell. इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स में क्या फ़र्क है? जवाब, दोनों प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जैसे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सेल के अंदर काम करते हैं, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स जैसे पेप्सिन सेल के बाहर काम करते हैं। What is a prosthetic group? Answer. A prosthetic group is the cofactor that is permanently attached to an enzyme and is required for its biological activity. एक प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? जवाब, प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कोफैक्टर है जो मुस्तकिल तौर पर एंजाइम से जुड़ा होता है और उसकी बायोलॉजिकल सरगर्मी के लिए ज़रूरी होता है। Why do enzymatic reactions stop working at high temperatures? Answer. Bonds within the enzyme will begin to break. Enzymes will become denatured, lose their specific shape. Changes to the shape of the active site mean substrates cannot bind. Enzyme-substrate complexes cannot form. Enzymes cannot catalyze the reaction.
हाई टेम्परेचर पर एंजाइमेटिक रिएक्शन क्यों काम करना बंद कर देते हैं? जवाब, एंजाइम के अंदर बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं। एंजाइम्स अपनी मखसूस शक्ल खो देते हैं। एक्टिव साइट की शक्ल में तब्दीली का मतलब है कि सबस्ट्रेट्स बंध नहीं सकते, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बन सकते, एंजाइम्स रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकते। What is the difference between substrate and product? Answer. Substrate. The molecules at which enzymes act are called substrates. Product. The molecules, which are produced after the action of enzymes on substrate molecules, are called products. सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? जवाब, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल जिन पर एंजाइम्स काम करते हैं सबस्ट्रेट्स कहलाते हैं। प्रोडक्ट वो मॉलिक्यूल्स जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पर एंजाइम्स के रिएक्शन के बाद पैदा होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। Define inhibitors. Answer. The substances which stop or reduce the activity of enzymes are called inhibitors. इनहिबिटर्स की तारीफ करें। जवाब, एंजाइम्स की सरगर्मी को रोकने या कम करने वाले मादे को इनहिबिटर्स कहते हैं। Define anabolism with example. Answer. Anabolism is a constructive process. Smaller simple molecules combine together in anabolism to form large, complex molecules. Energy is absorbed in anabolism. Example. Photosynthesis is an anabolic process. मिसाल के साथ अनेबलिज्म की तारीफ करें। जवाब, अनाबोलिज्म एक तामीरी अमल है। छोटे सादा मॉलिक्यूल अनाबोलिज्म में एक साथ मिलकर बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तवानाई अनाबोलिज्म में जज्ब होती है। मिसाल, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक अमल है। Define catabolism with example. Answer. Catabolism is a destructive process. Larger complex molecules are broken down into smaller, simpler molecules. Energy is released in catabolism. Example. Glycolysis is a catabolic process. मिसाल के साथ कैटाबोलिज्म की तारीफ करें। जवाब, कैटाबोलिज्म एक तबाहकुन अमल है। बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल छोटे, आसान मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। कैटाबोलिज्म में तवानाई जारी होती है। मिसाल, ग्लाइकोलाइसिस एक कैटाबॉलिक अमल है। Define optimum temperature. Answer. The specific temperature at which an enzyme works at its maximum rate is called as optimum temperature of that enzyme. Example. The optimum temperature for the maximum working speed of human enzymes is 37 C. ऑप्टिमम टेम्परेचर की वजाहत करें। जवाब, मखसूस दर्जा हरारत जिस पर एक एंजाइम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शरह पर काम करता है इसे इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। मिसाल, इंसानी एंजाइम्स की ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की रफ्तार के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। What is optimum pH? Answer. A narrow range of pH at which all enzymes work at their maximum rate is called optimum pH. ऑप्टिमम पीएच क्या है? जवाब, पीएच की एक महदूद रेंज जिस पर तमाम एंजाइम्स अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शरह पर काम करते हैं इसे ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है। Define activators. Answer. The substance which increase or speed up the activity of enzymes are called activators. एक्टिवेटर की तारीफ करें। जवाब, वो मादा जो एंजाइम्स की सरगर्मी को बढ़ाता या तेज करता है इसे एक्टिवेटर्स कहते हैं। Name of the factors affecting the rate of enzyme action. Answer. Temperature, pH, substrates concentration. एंजाइम के अमल की शरह को मुतासिर करने वाले अवामिल के नाम बताएं। जवाब, दर्जा हरारत,
pH सबस्ट्रेट्स की कॉन्सेंट्रेशन In which medium pepsin and trypsin enzymes work? Answer. Pepsin enzyme works in acidic medium, trypsin enzyme works in alkaline medium. पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम्स किस मीडियम में काम करते हैं? जवाब: पेप्सिन एंजाइम तेजाबी मीडियम में काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। What is denaturation of an enzyme? Answer. High heat and extreme pH levels breaks the hydrogen bonds of an enzyme and causes a change in its shape. This is called denaturation. एक एंजाइम की डीनेचरेशन क्या है? जवाब: ज्यादा गर्मी और इंतहाई पीएच की सतह एक एंजाइम के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देती है और उसकी शक्ल में तब्दीली का सबब बनती है। इसे डीनेचरेशन कहते हैं। Define activation energy. Answer. The minimum amount of energy required to start a reaction is called activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी की तारीफ करें। जवाब: रिएक्शन शुरू करने के लिए दरकार तवानाई की कम अज़ कम मिकदार को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। How do enzymes lower activation energy? Answer. Enzymes make it easier for chemical reactions to happen by changing the shape of the substrates involved, affecting their charges, and aligning them correctly for the reaction to occur. एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं? जवाब: एंजाइम्स शामिल सबस्ट्रेट्स की शक्ल बदलकर, उनके चार्जेस को मुतासिर करके और रिएक्शन के वाक़े होने के लिए उनको सही तरीके से सीध में करके कीमियाई रिएक्शन के लिए आसान बनाते हैं।